Okay, so in today's lecture, let me cover the last topic from unit number 4, okay, which is center of gravity. Okay, so our next topic is just 1 minute. Let me just reopen this file again. Okay, so the last topic from unit number 4 is center of gravity. Okay, so what is this? So this is one of the defuzzification technique by which you can find a crisp value. Okay, and what are the different defuzzification techniques? So let me just go through once again quickly. So in the last part, these all are actually the defuzzification methods, and based on this fuzzification part and defuzzification part, okay, we'll start our next unit, okay, in next week. So sorry, in this week itself. So under this defuzzification methods, total there are 4 methods. One is lambda cut or alpha cut. Okay, so this is the first method. Second is maxima methods. Under this method, there are actually total 4 cases. Height method, it means just find a point which have the highest membership value, or unique point which have the highest membership value. First stop maxima, for this we need to cover all those points who's having the highest membership value, and among those points consider the minimum value, that becomes the first stop maxima. Last stop maxima, the maximum value from this set of all those points which are having the highest membership value become the last stop maximas. Okay, so generally for this second and third case, we consider the example of trapezoidal membership function. So here you can see this these points are having the highest membership value. So the point corresponding to this, it's called as first stop maxima, and the point corresponding to this, it's called as last stop maxima. Okay, and mean of maxima is just the middle point of this. Okay, so this is our second defuzzification method, and after that I think we have just covered the center of sum part. Okay, this is also important in today's exam. Okay, so center of sum, in this case we just so here we have given 2 fuzzy sets. One is a1 tilde, second is a2 tilde. So a1 tilde is denoted by green color, a2 tilde is denoted by this blue color, and we have to use this center of sum method, and, and from that method we have to find a point or a crisp point corresponding to this fuzzy set. Okay, so it is very simple method. In this method, just identify the number of fuzzy sets. So here we have given 2 fuzzy sets, a1 tilde and a2 tilde. After that, for first fuzzy set, calculate its area, which is nothing but a1. Okay, and for second fuzzy set, for first fuzzy set, calculate its area, which is a1, and and calculate x1 also. X1 is what? Height of that fuzzy set. Okay, so in case of trapezoidal region, your height is nothing but the middle value. Okay, and for, so here you can see this 3 and 7. Okay, so just identify a middle value of 3 and 7, that become the x1 value for first fuzzy set. Similarly, calculate a2. A2 is what? The area of second fuzzy set, and x2 is the height of that second fuzzy set, divided by area of first fuzzy set plus area of second fuzzy set. So based on this, in today's exam, you can you will see one question. Okay, so just calculate area of first fuzzy set. So this trapezoidal membership function is actually a combination of 3 regions. 2 are triangles, one is rectangle. So the area of triangle is 1/2 base into height, and the area of rectangle is L into B, okay, length into breadth, and again the area of triangle, which is 1/2 length base into height. Okay, so simple calculation is there, and from that you will get the area of first fuzzy set a1, and x1 is the height of that first fuzzy set, or you can also consider it as a middle value of that largest membership values. Okay, or points, the middle value of those points which are having the largest membership value. Okay, and similarly calculate a2 and x2. So both areas are almost similar. Okay, so similar formulas are there, only we need to identify proper values, and then
perform that calculation, you will get that X star as 5.353. So in all these defuzzification techniques, okay, you will always see your final answer is actually a middle point, okay, tentatively, okay. I'm not saying exactly a middle point, but in every case your defuzzification point or your crisp point is always a middle point of your entire region, or or simply uh, center of gravity point, you can say, okay. So it's a middle point or middle value of your given region, okay. And now let me explain the last method, which is center of gravity method, okay. So again, using this method we can find the crisp point corresponding to given fuzzy set. So here you can see this formula is like this. So that crisp point, or simply X star, is equal to integration mu a of x into x dx divided by integration of mu a of x dx, okay. This is the formula, okay. The theory is already there. So sorry. So yeah, so in case of center of gravity, your formula is like this: X star is mu a of x into x dx upon mu a of x into dx, okay. So now let me explain this calculation, okay. So right now immediately will not understand how you find this integration, or so let me take one numerical, and from that I will explain how you can apply the center of gravity method to find this X star, okay. So let me explain this formula directly from one numerical. So let me just copy one numerical yeah, from this sheet, and then we'll solve in detail, okay. So this is one question. Okay, yeah, I hope this part is visible to all now. So there is one, okay, just let me complete it first. Yeah, okay. Okay. So here question is like this: find crisp value corresponding to following fuzzy set. So here we have given two fuzzy set. One fuzzy set is denoted by this blue color, that is called as A1 tilde. So this blue color part is actually your A1 tilde, and the second fuzzy set is denoted by a green color, okay. So this is our A2 tilde, okay, A2 tilde and A1 tilde, okay. And what is our question? Find a crisp value corresponding to these two fuzzy sets, A1 tilde and A2 tilde, but using which method? Using the method of center of gravity, okay. So so how you find a point or a crisp point using center of gravity? So before applying this method, okay, first of all calculate the boundary of your given fuzzy sets, okay. तो इस केस में आपको जैसे प्रीवियस केस में आपने देखा था, आपने फजी सेट अकॉर्डिंगली मतलब इंडिविजुअल फजी सेट के लिए आपने कैलकुलेशन किया था, मतलब A1 टिल्डा का कैलकुलेशन था, A1 टिल्डा के लिए आपने A1 का एरिया कैलकुलेट किया था, सेम केस में आपने X1 कैलकुलेट किया था. सो A2 टिल्डा का भी आपने एरिया कैलकुलेट किया था, सेम केस में आपने X2 पॉइंट भी कैलकुलेट किया था. सो दैट सेंटर ऑफ सम मेथड इज डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल फजी सेट, but this method, this center of gravity method is not depend on your individual fuzzy sets. Here we have to consider the entire region, union of our entire region. तो इस केस में आपको करना क्या है? Just consider union of our entire region. So what is the union of our entire region? So for that just consider the boundary part. So let me draw that diagram again here. And now consider only the boundary parts of this given fuzzy sets, okay. तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में आपको पहले क्या करना है, जितने भी फजी सेट्स गिवन है आपको बस क्या करना है, जस्ट ड्रॉ अ बाउंड्री और सिंपली कंसिडर यूनियन ऑफ ऑल दिस फजी सेट्स, ओके. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस बाउंड्री, okay. So one point is there A to B, this is one boundary, then B to C, okay, then C to D, and then D to E. So in first step, this is, you can say, step number 1. This is my step number 1 in solution. So in first step,
just draw a boundary of a given position. And now let me just put the points. So this is my A points, this is my B point, this is my C point, this is my D point, this is my E point. And now let me also put the values. So this B point has values 2 and 0.2, okay, 2 and 0.2. This C point has value 4 and 0.2. This D point has coordinates 5 and I think 1, okay, so 5 and this value is 1. And this E point that you can calculate easily, this E point is this point is 6, so this E point is 6 comma 0, this A point is 0 comma 0, okay. So and now, so after this, by so in first step, just consider a combined region of a given fuzzy set. And now in next step, calculate this integral, this single integral over calculate the single integral over each boundary. Okay. Next, आपको करना है क्या? ये जो single integral है, ये आपको कैलकुलेट करना है ओवर ईच बाउंड्री. ओके, सिंगल इंटीग्रल आपको पता ही है. ओके, इन जनरल द इंटीग्रल ओवर y dx ऑलवेज गिव्स यू एरिया. ओके, तो आपको करना क्या है, आपको ये a टू b का एरिया कैलकुलेट करना है, b टू c का एरिया कैलकुलेट करना है. सो दिस इज माय, लेट मी कंसीडर दिस इज माय एरिया 1. तो आपको ये एक एरिया कैलकुलेट करना है, ये एक एरिया कैलकुलेट करना है, ये एक एरिया कैलकुलेट करना है, और बाय दिस और बाय दिस. तो टोटल देयर आर 4 एरियाज. ओके, तो ये सारे एरियाज आपको कैलकुलेट करने. तो ये जो सिंगल इंटीग्रल आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज सो दैट नथिंग बट द एरिया अंडर अ कर्व y. ओके, दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर अ कर्व y. ओके, सो इंटीग्रल y dx. तो यहाँ पे इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, आप बेसिकली एरिया कैलकुलेट कर रहे हो. ओके, सो हियर सिंस here we have 4 lines AB, BC, CD and D. So this x star become, so in next step आपको क्या करना है, हर एक लाइन के लिए या हर एक y के लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना है. ओके, y मतलब फंक्शन. तो यहाँ पे कितने फंक्शन आपके पास, AB एक फंक्शन है, BC एक फंक्शन है, CD एक फंक्शन है, D एक फंक्शन है, और सिंपली जस्ट कंसीडर द बाउंड्री लाइंस. ओके, तो आपको क्या करना है, सो माय x star become the integral over AB. एंड फॉर्मूला क्या है, म्यू a of x into x dx. ओके, सो इंटीग्रल ए बी म्यू a of x into x dx. ओके, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल फ्रॉम a to b म्यू a of x dx. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट एरिया ऑफ सेकंड पार्ट. सो जस्ट लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दिस पार्ट अगेन. दिस इज माय सेकंड बट फ्रॉम B to C. ओके, पहले मैं कॉपी कर लेता हूं सारे, फिर मैं करेक्शन करता हूं उसमें. इतने आपको कैलकुलेशन करने. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन के लिए. ए बी के नीचे जो एरिया वो आपको कैलकुलेट करना है, उसका ये फॉर्मूला है. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैलकुलेट एरिया फॉर बी सी. ओके, सो एरिया अंडर द कर्व बी सी. नेक्स्ट आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व सी डी, और यहां पे भी एरिया अंडर द कर्व सी डी. एंड इन लास्ट केस, सो ये सारा प्लस होने वाला, प्लस प्लस, एंड लास्ट में एरिया अंडर द कर्व डीई, एरिया अंडर द कर्व डीई. ओके, तो एक्चुअली आपको ये कैलकुलेट करना है. तो मैं फिर से रिपीट करूं क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी जितने भी फजी सेट्स गिवन है उनका एक कंबाइंड रीजन कैलकुलेट करो और सिंपली कंसीडर बाउंड्री ऑफ दैट गिवन रीजन. ओके, हर एक बाउंड्री या जो भी बाउंड्री आपको मिलेगी दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस. ओके, every boundary of a fuzzy set is actually a combination of different straight lines, I can say. Okay, so यहाँ पे you can see this whole boundaries are actually a combination of 4 different straight lines. So your formula become that same integral, this same integral over AB, then BC, then CD, then D. Okay, now can anyone tell me in this case what are this, what are the values on x axis, what are the values on x axis? These are the values of x only,
करेक्ट ना। एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज आप उसको किससे डिनोट करते हो, एक्स से डिनोट करते हो, और वाई एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज है आप उसको किससे डिनोट करने वाले हो यहाँ पे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस इन फजी केस, इन फजी ग्राफ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड एज, ये अगर एक्स के वैल्यूज है तो ये क्या है वाई एक्सिस पे, यस एनीवन, if these are the values of x, okay, or given set, what are these values on y axis, these are called as, or what is the notation for this, yes, क्या ये, these are the values of your membership function, okay, or simply these are the values in the closed interval 0 to 1, okay, ये सारे x के ओके हर एक पॉइंट को आपको पता है, हर एक पॉइंट को आप एक वैल्यू असाइन करते हो इन बिटवीन इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मेंबरशिप वैल्यू, सो दिस आर नथिंग बट द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स। बट आपको पता है इन जनरल आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस के वैल्यूज को आप एक्स से डिनोट करते हो और वाई एक्सिस के वैल्यूज को आप किससे डिनोट करते हो, वाई। सो इन माई केस नाउ म्यू ए ऑफ एक्स, ओके, म्यू ए ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। इन दिस केस my this x value is denoted by x and the y value is denoted by y, okay, अभी फिर से नीचे आते, तो अभी इस केस में सारी जगह पे मैंने म्यू ए ऑफ एक्स, म्यू ए ऑफ एक्स लिखा है, सो इट सिंपली मीन्स y x dx। तो आपको यहाँ पे हर एक केस में कैलकुलेट क्या करना है, y कैलकुलेट करना है। सो ए बी के लिए y क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, ए बी का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, बीसी के लिए y क्या है तो उसके लिए आपको बीसी का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, सीडी के लिए वाई क्या है तो उसके लिए आपको सीडी का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, डी के लिए वाई क्या है तो उसके लिए आपको डी का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। सो इन एवरी केस रिमेंबर दिस म्यू ए ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई वैल्यू, ओके। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर्मूले से थोड़ा आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो sorry, let me just copy this entire sum, okay, and now let me explain again। अभी आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, x एक्सिस पे जो भी पार्ट है दैट इज यूर x, ओके, तो इसलिए x में कोई चेंज नहीं होगा, बट y एक्सिस पे अभी जो वैल्यूज है वो मेंबरशिप वैल्यूज है, ओके, दैट इज म्यू ए ऑफ x है वो, बट आपको पता है इन जनरल आप उसको किससे डिनोट करते हो, y से डिनोट करते हो। सो दिस फॉर्मूला बिकम y x dx, ओके। तो इन सारे केसेस में अभी क्या चेंज होगा, y x dx, ये बस नोटेशन में मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि आपको वो समझ में आ जाएगा देन क्विकली, ओके, देन y x dx, और यहाँ पे भी y x dx, इतना ही नहीं नीचे भी चेंज होगा, दिस बिकम y dx एंड दिस आल्सो बिकम y dx, ओके, दिस आल्सो बिकम y dx। तो आप डायरेक्टली यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी आप फॉर्मूला ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, बट इंस्टेड ऑफ दिस नाउ यू कैन कंसिडर अ फॉर्मूला एज इंटीग्रल over yx dx divided by integral y dx over a line, okay, over a line, ठीक है, on a particular line, okay। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं इसके आगे, now I have to just solve this integral over a line AB। तो AB के ऊपर सॉल्व करने के लिए पहले मुझे AB का इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे भी BC के ऊपर सॉल्व करने के लिए मुझे BC का इक्वेशन चाहिए, like that। So in next step, in step 2 I need to calculate equation of all these lines, okay। So let me calculate equation of straight line AB, equation of straight line AB, okay। तो उसके लिए मुझे A पॉइंट चाहिए, A पॉइंट क्या है मेरे पास, A पॉइंट इज 0 0 and B पॉइंट इज 2, 0.2। So A पॉइंट इज 0 0, B point is 2, 0.2. So now can anyone tell me what is the formula of straight line connecting these 2 points? Huh? What is the formula of straight line connecting these 2 points? क्या है formula? Y minus y1 is equal to, yes, y2 minus y1 upon x2 minus x1। आपने कैसे
लर्न किया है बोलो मुझे, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस फॉर्म में देखा था आपने, यस, इज इट करेक्ट और नॉट, और सिंपली जो ज्यादातर यूज होता है वो मैं उसी वे से जाता हूं, y माइनस वाई वन अपॉन x minus x1 equal to this. So this is the formula of your straight line passing through 2 points, okay, a to b. तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन अपन x माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस एक्स वन. तो ये क्या होता है, दिस इज माई x1 y1 and this is my x2 y2. Now just perform the calculation. So y minus y1, but y1 is 0, so only y, okay, so only y divided by x minus x1, but x1 is 0, so only x, it is equal to y2 minus y1. y2 क्या आपका 0.2 minus 0 is just a 0.2 divided by x2 minus x1. x2 is 2, so divided by 2, correct, and 2 minus 0 is again 0. So so what is your answer? So 0.2 divided by 2, 0.2 divided by 2 is actually 0.1. So this implies your first equation is y equal to 0.1x. तो जैसे आपके पास पहला इक्वेशन आ जाता है, आप ये पहला इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ आई कैन फाइंड दिस फर्स्ट इंटीग्रल. ठीक है, तो यही मैं अभी कॉपी करता हूं और ये अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं. सो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस फर्स्ट इंटीग्रल, क्योंकि आपने पहला इक्वेशन कैलकुलेट किया तो अभी आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कैन एनीवन ट्राई? क्या लिखना है आगे? मुझे ए टू बी की लाइन के लिए ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. मेरे पास वाई भी है, x तो x ही होगा, एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? कैसे लिखना है आपको ये? सो इंटीग्रल y की वैल्यू क्या है, 0.1x इंटू x dx होल डिवाइडेड, ओके, इंटू x dx. ओके, नाउ व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x? अभी ये इंटीग्रल आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो, सो a टू b लाइन के लिए x के लिमिट्स क्या है? फिर से सुनो, यहां पे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x जा रहा है और आपको ये अभी यहां पे लिमिट्स लिखने होंगे ना आपको. ओके, a टू b लाइन के लिए, सो a टू b लाइन के लिए x के लिमिट्स क्या है? योर x वैरी फ्रॉम 0 to 2. सो माय x वैरी फ्रॉम 0 to 2. ओके, मैंने हाईलाइट किया है. एंड होल डिवाइडेड बाय सेम इंटीग्रल 0 to 2 0.1 x dx. यहाँ पे बस x से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई नहीं होता है. अब इसके आगे एक और मैं आपको ट्रिक देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऐसे 4 इंटीग्रल आने वाले और 4 इंटीग्रल हमें सॉल्व भी करने. तो आप क्या करो, जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस एग्जांपल ऑन ए कैलकुलेटर. ओके, सो इफ कैलसी इज देयर इन माय लैपटॉप, आई विल टेल यू. एक बार देखता हूँ है क्या अभी. या नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन फाइंड these values on a calculator. अभी शायद इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, so yeah, okay, so it is not possible. Okay, yeah, so let me come here again. So कैलकुलेटर में आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो. सो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज यू कैन रेफर एनी यूट्यूब वीडियो, ओके, हाउ टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल ऑन कैलकुलेटर. ये इंटीग्रल आप कैलसी में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, तो विद इन अ सेकंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल. ओके, सो प्लीज सर्च हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. और शायद एक डिवीजन में मैंने लिया भी है. ओके, या नेक्स्ट लेक्चर में कहीं पे स्कोप मिलता तो मैं ले लेता हूँ. बट अगर आपको इंटरेस्ट, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे मेरे से डाल सकते हो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑन यूट्यूब. तो आपको ये इसका वीडियो मिल जाएगा. तो ये डायरेक्टली इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है कैलसी पे एंड यू विल गेट द वैल्यू. ओके, सो इस केस में अभी मेरे पास रेडीमेड आंसर है, सो आई विल डायरेक्टली यूज दैट आंसर. सो दैट वैल्यू इज 4/15. Just 1 minute. 4/15. एक मिनट. So it is, I think, 4/15 and 1/5. Okay, so let me just copy that value.
4/15 अपॉन 1/5। यहाँ पे एक ही करेक्शन मुझे करना है, ओके। दिस इज entirely a numerator. Just let me do that correction. Yeah, this is entirely a numerator and this is entirely a denominator. Okay. And now ये दो वैल्यूज आपके पास आ गए, ठीक है। एंड नाउ लेट मी कैलकुलेट द नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस आपकी क्या है, अभी आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट लाइन विच इज B2C। ओके, सो लेट मी कैलकुलेट फॉर B2C। ओके, सो नाउ नेक्स्ट केस इज लाइन B2C। ओके, तो B पॉइंट क्या है, सो लेट मी जस्ट चेक दैट पॉइंट। सो B पॉइंट इज 2,0.2। सो B पॉइंट इज 2,0.2 and D point is, actually करने की जरूरत नहीं है, okay? Why? Can anyone tell me what is the equation of BC here? क्योंकि BC एक straight line, it's a horizontal line parallel to x-axis. So can you tell me directly what is the equation of BC? करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इक्वेशन तो आपको पहले ही पता है। What is the equation of BC? अगर फॉर्मूला पे आप अप्लाई करते हो तो वही आएगा। This line is parallel to x-axis, therefore equation of BC is y equal to 0.2. Okay? So that saves your time. So the equation of BC, since this line is parallel to y-axis, therefore its equation is y equal to 0.2. Okay? तो ऐसे अभी मैं सारे केसेस में इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। नाउ नेक्स्ट केस इज C2D। ओके, तो C2D के लिए मुझे C पॉइंट चाहिए, D पॉइंट चाहिए, है ना। तो C पॉइंट क्या है मेरा, C पॉइंट क्या है, C पॉइंट इज 4,0.2, D point is 5,1. Okay, 4,0.2 and D point is 5,1. Okay, again apply the same equation. So I have ready-made solution. So let me come here again. Okay, तो अभी हमने AB का इक्वेशन कैलकुलेट किया था, y इक्वल टू 0.x आया था। BC का इक्वेशन क्या होगा, BC के केस में ये लाइन डायरेक्ट, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर योर इक्वेशन इज y इक्वल टू 0.2। एंड नाउ CD के केस में, C पॉइंट आपको पता है, C इज 4,0.2, D पॉइंट इज 5,1। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस बिकम y माइनस 0.2 अपॉन x माइनस 4, which is equal to 1 minus 0.2 upon 5 minus 4, correct? So complete this calculation, you will get the equation as y equal to 0.8x minus 3, okay? And in a similar way, you can calculate equation of DE. So D point is 5,1, E point is 6,0, and that corresponding equation is minus x plus 6. Okay? और आपको मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया कि आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, okay? Over the entire region. Okay? We have to solve this integral over an entire region. Okay? तो यहाँ पे आपका entire region है, but आपका जो entire region है, that is so your entire region is distributed in 4 different lines, है ना। आपको एक्चुअली फॉर्मूला यही है ना, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको अभी मैंने शो किया था, वही आपका फॉर्मूला है। दिस इज योर फॉर्मूला म्यू a of x x dx। बट यहाँ पे जो इंटीग्रल आ रहा है, ये इंटीग्रल क्या है, दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट द होल बाउंड्री ऑफ अ गिवन रीजन। बट यहाँ पे जो आपकी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री आपकी 4 लाइंस में डिवाइड हो रही है, A to B, B to C, C to D and D to E. Therefore, your formula becomes, so this numerator, since this integral is divided in 4 parts, okay, so therefore this numerator is divided in 4 parts. ये इंटीग्रेशन का रूल है, okay? फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक्चुअली पॉइंट क्या है, A to E आपको आना है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल जाएगा वो क्या जाएगा, A to E। बट A to E ये जो रीजन है आपका, ये कितने पॉइंट्स में डिवाइड हो रहा है, A to B देन B to C, है ना। A to E आपको जाना है। So this A to E region divided in 4 parts. One is A to B, then B to C, then C to D, and then D to E. और हर एक केस में आपने ऑलरेडी इक्वेशन ऊपर सॉल्व किया है, और आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, म्यू A of x नथिंग बट ए बी जो लाइन है उसकी y की वैल्यू, तो वो आपने अभी कैलकुलेट की है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सो म्यू A of x इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। और सिंपली y ऑफ द वैल्यू ऑफ y, एंड दैट x वैरी फ्रॉम 0 to 2, ओके। नेक्स्ट नीचे वही है, बस x को रिमूव करो, 0.1x dx 0 to 2। यहाँ पे BC लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू 0.2, therefore mu A of x is equal to 0.2 only into x dx। एंड सेकंड केस में आपका x कैसे वैरी हो रहा है, आप देखो B to C के लिए आपका x कैसे वैरी हो रहा है,
2 to 4 वैरी हो रहा है. सो B2C के लिए योर x वैरी फ्रॉम 2 to 4. नाउ और नीचे सेम इंटीग्रल लिखना है, बस x को डिलीट करना है. C2D में C2D का इक्वेशन क्या है? C2D का y इक्वल टू 0.8x-3, इसलिए यहाँ पे म्यू a ऑफ x की वैल्यू आएगी 0.8x-3 इंटू एक्स डी एक्स. और C2D के लिए आप x देखो, x वैरी हो रहा है 4 to 5. तो C2D के लिए x वैरी हो रहा है 4 to 5 और नीचे इस x को डिलीट करो और अदर इंटीग्रल लिखो. लास्ट केस में D2E केस में योर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू -x+6, okay, multiply by x dx, and in last case you can see here for the line D to E your x vary from 5 to 6. So therefore in last case your integral vary from 5 to 6, or in denominator replace delete this x only. Okay, so here you will get 4 integrals in numerator and 4 integrals in the denominator. Okay, so don't take any burden of this 4 integrals, because these all integrals can be calculated directly, okay, on your scientific calculator. So just put this integral, or please do this practice and calculate value of this integral. So you will get the values as 4/15 plus 6/5, and within a fraction of second you will get this answer. 6/5, 83/30 plus 8/3. In a similar way, calculate the values of these 4 integrals in the denominator, and those are 1/5, 2/5, 3/5, and 1/2. And again perform this calculation, okay, in calculator. You will get the point as 4.059, and again you will see this is the middle point. Okay, it tentatively it is always a middle point of your given region. ये आंसर कभी भी आपका 6 नहीं आने वाला, कभी भी 0 नहीं आने वाला है, कभी भी 1 नहीं आने वाला. इट इज अराउंड द मिडल पॉइंट. ओके, टेंटेटिवली एंड मिडल पॉइंट ऑफ योर गिवन रीजन. इसलिए आपका जो कैलकुलेशन आता है वो भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका आंसर 7 आता है इट मीन्स इट इज टोटली रॉन्ग. अगर आपका आंसर -5 आता है इट मीन्स इट इज टोटली रॉन्ग. आपका जो आंसर होगा वो 0 to 6 में ही रहेगा. ठीक है, इन एवरी एग्जाम्पल ऑफ डिफजिफिकेशन. Okay, so this is one of the important method which will be there for 5 or 7 marks in end-term examination. Okay, is this clear, or you want me to take one more example? Clear हो रही है मेथड, या और एक एग्जाम्पल देखना है? बोलो जल्दी. Is this method clear? Please reply fast. Is this method clear? Center of gravity method, or you want me to take one more example? Please reply through message, because I'm not getting your voice. Okay, so I will take one small example on this method and then we'll end this. Okay, तो एक create करके आपको मैं एक small example देता हूँ. Okay, yeah. So just 1 minute. X-axis, y-axis. Now consider a first fuzzy set as this. This is my first fuzzy set. Okay. And consider one more fuzzy set. Okay, which is this. क्या करता हूँ, इतना ही लेता हूँ. ठीक है, ओके ओके डन. सो इतना ही रीजन में लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो 2 फजी सेट का ये कॉम्बिनेशन है. ओके, एक ब्लू फजी सेट है, ओके, एक ग्रीन फजी सेट है. एंड लेट मी जस्ट गिव यू द पॉइंट्स. सो दिस पॉइंट इज 0. सॉरी, ये पॉइंट 0 है. एक मिनट के लिए वैल्यूज में फिक्स कर लेता हूँ. Let me just rearrange this. Just a 1 minute. थोड़ा अलग लेता हूँ ना, तो पॉइंट्स ज़्यादा सिमिलर जाएंगे. ओके,
ठीक है। एंड नाउ लेट मी जस्ट, ये एक पॉइंट आएगा, ये भी एक पॉइंट आएगा, ये भी एक पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट आएगा और ये एक पॉइंट आएगा। ओके सो 0 1, इसको मैं थोड़ा और आगे लेता हूँ। सो क्रिएट कर रहा हूँ, तो 1 मिनट बस दे दो मुझे। तो ये मिडल पे लेता हूँ कहीं पे, ठीक है। नाउ okay so this is 1, this is this point is 2, this point is 2, this point is 3, this point is 4, this point is say 5, this point is 6। ओके और अभी मुझे बस वैल्यूज असाइन करने हैं। तो इसके लिए वैल्यू रहेगी 0.4 और इसके लिए वैल्यू रहेगी 0.8। ओके डन। तो ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे ऐसे आएगा, ये ग्राफ है और क्वेश्चन में ये रहेगा। जस्ट लेट मी ड्राफ्ट अ क्वेश्चन प्रॉपरली। फाइंड क्रिस्प वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फजी सेट यूजिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। ओके डन। तो ये आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। सो नाउ इन सॉल्यूशन, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, कंसीडर ओनली बाउंड्री पार्ट ऑफ दिस गिवन फजी सेट। कंसीडर ओनली बाउंड्री पार्ट। ओके सो तो यहां पे एक और पॉइंट मुझे देना पड़ेगा आपको। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली मिडल पॉइंट ऑफ दिस। तो यहां पे मैं 2.5, ये जो पॉइंट होगा ना, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में रहेगी, ये वैल्यू मैं 2.5 लेता हूं, ये मिडल का पॉइंट, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ड्रॉ ओनली अ बाउंड्री पार्ट ऑफ दिस गिवन रीजन। ओके तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं बस बाउंड्री पार्ट ड्रॉ करने वाला हूं। सो दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस एज इट इज। तो बाउंड्री पार्ट क्या है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, फिर यहां तक है, फिर ऐसा है, नेक्स्ट पार्ट इज दिस। डन। तो ये क्या है, बाउंड्री पार्ट है। एंड जैसे ये वैल्यूज है एज इट इज वैल्यूज नीचे आप कंसिडर करो, ठीक है। तो ये पॉइंट था 0, this point is 0, this point is 1। what is this point, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज 2.5। ये पॉइंट क्या है आपका, दिस पॉइंट इज 4 एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, 6। ओके एंड नाउ लेट मी denote this point by A, this point by B, this point by C, this point by D। okay? और आपको इतना ही नहीं, आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, हर एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगी। सो दिस पॉइंट इज से 0.2। तो क्वेश्चन में और क्या गिवन है, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, दिस बी पॉइंट हैज मेंबरशिप वैल्यू 0.2। दिस सी एंड डी बोथ हैज द मेंबरशिप वैल्यू 0.4 and this A point has membership value 0.8। ठीक है। तो हर एक इन अ सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें हर एक पॉइंट की मेंबरशिप वैल्यू आपको गिवन होगी। तो जो जो आपको चाहिए ना, जैसा अभी मैंने बस यहाँ पे क्या क्या पहले बाउंड्री ड्रॉ की है। अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है, दिस बाउंड्री इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस। हमेशा सारे क्वेश्चन में आपको ये ट्रायंगुलर और ट्रेपेजोइडल शेप ही आने वाले, सो डोंट वेरी अबाउट द शेप। तो हर एक केस में जो बाउंड्री होगी, दैट बाउंड्री इज डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। ओके तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इस केस में जो मेरी बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज डिवाइडेड बाय 4 डिफरेंट लाइंस। वन इज O2A, नेक्स्ट A2B, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एज B, then next is B2C, then last line is C2D। ओके तो आप देखो O2A, A2B, B2C, C2D, 4 लाइन से यह बाउंड्री आपकी डिवाइड हो रही है। और आपको क्वेश्चन में हर एक पॉइंट का, मतलब O पॉइंट का, A पॉइंट का, B पॉइंट का, C पॉइंट का, D पॉइंट का, हर एक पॉइंट की वैल्यू गिवन होगी और हर एक पॉइंट की मेंबरशिप वैल्यू गिवन होगी। ओके इज दिस क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई मी। स्टेप 1 समझ में आ रही है, बाउंड्री ड्रॉ करनी है, पॉइंट ड्रॉ करने और हर एक की मेंबरशिप वैल्यू भी लिखनी है यहां पे। यस yes or no, please reply me fast। is this part clear? okay and now
नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय म्यू ए ऑफ एक्स। बट ये जो इंटीग्रल आपका जा रहा है, दिस इंटीग्रल इज फॉर एंटायर बाउंड्री, एंटायर बाउंड्री आपकी क्या है, O2D, सो दिस इंटीग्रल फॉर एंटायर बाउंड्री O2D। बट आपको क्या समझ में आ रहा है, आपकी जो एंटायर बाउंड्री है O2D, ओके, दिस एंटायर बाउंड्री इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट, सो दिस फॉर्मूला बिकम, सो देयरफॉर योर x स्टार बिकम इंटीग्रल, सो दिस OD O2D, this path is divided in 4 part, one is O2A, okay, mu a of x x dx, next is A2B, mu a of x x dx, next is B2C, next is C2D, x dx, and whole divided by, ओके, सेम फॉर्मूला है, बस आपको x को रिमूव करना है, ओ ए म्यू ए ऑफ एक्स डी एक्स, ए बी म्यू ए ऑफ एक्स डी एक्स, बी सी म्यू ए ऑफ एक्स डी एक्स, सी डी mu a of x dx. Okay, and now let me calculate one by one all these integrals. Okay, अभी इस हर एक क्वेश्चन में mu a का मतलब क्या है, mu a means वैल्यू ऑफ y, और सिंपली आप क्या करो, OA का इक्वेशन कैलकुलेट करो, OA का जो इक्वेशन होगा वहां से y की जो वैल्यू आएगी दैट बिकम mu a ऑफ y। तो ये हमेशा क्या है, सारे केस में ये y है, ठीक है, ये सारे वैल्यूज क्या है, y। सो लेट मी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ OA, ओके, अभी दिखाई देगा आपको। सो लेट मी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ OA। तो इक्वेशन ऑफ OA कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट केस OA का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। हाँ, तो OA का इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको O पॉइंट चाहिए, तो O पॉइंट क्या है, 0,0, A पॉइंट क्या है, A पॉइंट इज 1,0.8, सो 1,0.8, करेक्ट। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये होता है x1 y1, है ना, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। सो y माइनस y1 मीन्स 0 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज 0, y2 माइनस y1, y2 इज 0.8, सो 0.8 divided by x2 is 1 minus 0, okay, so you will get y is equal to 0.8 into x, हो गया, okay। तो अभी आपका फर्स्ट केस में यहां पे क्या आएगा, म्यू a ऑफ x की जगह पे आएगा 0.8x, नीचे भी म्यू a ऑफ x की जगह पे आएगा 0.8x फॉर द लाइन OA। कम टू कैलकुलेट नाउ नेक्स्ट केस A to B, उसके लिए मुझे चाहिए A पॉइंट, A पॉइंट क्या है, A पॉइंट इज सेम 1,0.8, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट इज 2.5, 0.2, 2.5, 0.2। पॉइंट लिखते समय भी आप देखो, मैं हमेशा क्या करता हूं, पहले x का पॉइंट लिखता हूं फिर y का पॉइंट लिखता हूं, ओके, इसको रिवर्स मत करो, क्योंकि ये होता है आपका x1 y1 और ये होता है आपका x2 y2। एंड नाउ लेट मी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB का मुझे इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो अभी फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने, y माइनस y1, सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0.8 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, सो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स व्हाट, y2 क्या है 0.2, सो 0.2 माइनस y2 माइनस y1, 0.2 माइनस 0.8 क्या आएगा, ये आएगा माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो 2.5 x2 माइनस 1, ये भी आएगा निगेटिव, सो दैट विल बी माइनस 1.5, ओके। तो अगर ये कैलकुलेशन में करता हूं यहाँ पे 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5, सो आई थिंक इट इज 0.4, just let me calculate it, 0.6 divided by 1.5, so this calculation is 0.4, okay। And now let me do the rearrangement, so y minus 0.8, sorry, y minus
0.8 इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स माइनस वन, बट मुझे y की वैल्यू चाहिए इसलिए और सिंप्लीफाई करता हूं, ये 0.4x माइनस 0.4 और ये y माइनस 8, सो y इज इक्वल टू 0.4x, ये 8 प्लस होगा, सो 8 माइनस दिस 0.4 दैट विल बी 7.6। ठीक है, आप ये आप कैलकुलेशन चेक करो, अगर कुछ मिस्टेक है तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ए बी लाइन के लिए मेरे पास y का इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 7.6, तो सेकंड का भी हो गया, इसका भी y मुझे मिल गया 0.8x प्लस 7.6। नाउ बीसी थर्ड केस, सो थर्ड केस इज बीसी। बीसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इट्स जस्ट सॉरी बीसी के लिए भी कैलकुलेट करना होगा, तो बी पॉइंट क्या है, सो बी पॉइंट इज 2.5 कॉमा 0.2 and C point is what? C point is 4 comma 0.4, 4 comma 0.4। ओके, तो अभी इसके लिए भी सेम कैलकुलेशन आप रिपीट करो, यू विल अगेन गेट सम y। ओके, सो हाँ, तो अभी मैं इसके आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसके आगे आप ये कैलकुलेशन करो क्योंकि सेम सेम कैलकुलेशन जा रहा है। ओके, एंड कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ बीसी। 6 में आपको क्या चाहिए, बीसी हो गया, लास्ट क्या है सीडी, तो सीडी का भी आपको इक्वेशन कैलकुलेट करना है। ओके, सीडी का इक्वेशन में डायरेक्टली लिख सकता हूं, सीडी का इक्वेशन क्या है, इट इज जस्ट y इक्वल टू 0.4, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो सीडी का इक्वेशन मुझे पता है, इट इज जस्ट y इक्वल टू 0.4। इसका भी आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं फास्ट करता हूं, क्या आएगा, ये होता है मेरा x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, सो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 minus y1 means 0.4 minus 0.2 which is 0.2 divided by x2 minus x1 means 4 minus 2.5 and which is 1.5। ओके, तो यहां से y minus 0.2 इक्वल टू क्या आएगा, ये 0.2x, मैं क्या कर रहा हूं x माइनस 2.5 को, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा या इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, चलो, so 0.2 divided by 1.5 and which will be 0.13 something, अभी approximate जाएगा, so this value is 0.13। okay, and now you calculate this, so this gives me y minus 0.2 equal to 0.13x minus 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है मुझे 2.5, तो वो जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 0.33, या आप चाहो तो 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्टली आ रहा है 1/3 ये कैलकुलेशन, सो y इज इक्वल टू जस्ट 1 मिनट, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, सो 0.13x और ये क्या आएगा 0.2 माइनस 1/3। ओके, यू कैन वेरीफाई दिस कैलकुलेशन, ये ऐसा कुछ तो आ रहा है, मैं फास्ट लिख रहा हूं बट आप वेरीफाई कर सकते हो, डन, ऐसा कुछ तो ये कैलकुलेशन आ रहा है। तो पहले तो इसके बाद मैंने क्या किया है, हर एक केस में मैंने y कैलकुलेट किया है। y कैलकुलेट करना मतलब उस लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना, और उसके आगे आपको क्या करना है, सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। अभी ये जो इक्वेशन था जो मैं कॉपी करके नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी इसमें आपको करना है क्या है, हर एक केस में बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, अभी ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं, सो इट इज इक्वल टू, सो फर्स्ट OA में म्यू ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, OA में म्यू ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y, वो क्या है 0.8x, फर्स्ट वैल्यू क्या है 0.8x, तो यहां पे क्या आएगा 0.8x मल्टीप्लाई बाय x dx, और OA के केस में x कैसे वैरी हो, लिमिट्स क्या आने वाले, OA लाइन के लिए x के लिमिट्स कैलकुलेट करो, OA लाइन के लिए योर x वैरी फ्रॉम 0 to 1, नीचे दिखाई दे रहा है OA लाइन के लिए x वैरी फ्रॉम 0 to 1, तो यहां पे आएगा 0 to 1, और नीचे ये सेम लिखना है, बस x को डिलीट करना है, सो 0 to 1 0.8x dx। सेकंड केस AB के लिए, AB का इक्वेशन क्या था, AB का इक्वेशन है 0.4x प्लस 7.6, 0.4x प्लस 7.6 मल्टीप्लाई बाय x dx, और AB लाइन के लिए x के लिमिट्स क्या है,
ए बी लाइन के लिए एक्स के लिमिट है 1 to 2.5, 1 to 2.5। नीचे सेम लिखना है, बस क्या करना है, x को डिलीट करना है, 0.4x प्लस 7.6 dx and 1 to 2.5। In a similar way, complete this third part, complete this fourth part, complete this third, complete this fourth। ठीक है, and now just perform this calculation on calculator, you will get the final answer। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है विद इन 5 मिनट्स, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, बट मैंने 2 आपको कैलकुलेट करके दिए, तो सिमिलरली आप आगे के 2 कैलकुलेट करो, कैलसियम में कैलकुलेशन परफॉर्म करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, 7 मार्क का एक क्वेश्चन है, जिसमें बस आपको एट द एंड अगर मैं ओवरऑल बोलता हूं ना, तो आपको बस करना क्या है, जस्ट कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन कुछ आप मैन्युअली नहीं करोगे, कैलसियम में होगा तो ये 100% करेक्ट होगा। सो देयर इज नो इश्यू विद दिस कैलकुलेशन, ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, आप ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परफेक्ट कैलकुलेट करो, अगर इसमें मिस्टेक होगी तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए भी। ओके, क्योंकि मार्क्स फिर उसमें लेस आ जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर नाउ, दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड? Okay, I will share this recording also, so you can so from this recording also you will verify all your answers. Okay, yes, which part is remaining? I think just let me, yeah, I have last 5 minutes, अगर कुछ पेंडिंग है। Yeah, okay, so I think in mechanical so one part is remaining, so okay, so let me take that, no issue, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो इजी पार्ट है। Yeah, so there is one more method, okay, it may be a repetition for computer, but okay, within 2-3 minutes I will explain this। okay, so weighted average method में basically आपको क्या करना है, so weighted average method में जितने फजी सेट्स से, ओके जैसे कि यहाँ पे A1 टिल्डा, A2 टिल्डा, A3 टिल्डा, इतने फजी सेट्स आ रहे हैं, तो आपको बस यहाँ पे करना क्या है, हर एक फजी सेट का आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। सो A1 टिल्डा की जो हाइट होगी दैट बिकम x1, A2 टिल्डा की जो हाइट होगी दैट बिकम x2। अभी जहां पे एक से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं वहां पे मिडल पॉइंट कंसिडर करो, है ना, यानी A3 टिल्डा की जो हाइट है दैट विल बी x3। तो ये तो समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या होगा, x1, x2, x3 कैसे कैलकुलेट करने, दोज आर द हाइट्स ऑफ योर फजी सेट। उसके बाद वो जो हाइट है या वो जो पॉइंट है x1, उसकी मेंबरशिप वैल्यू कंसीडर करो, दैट बिकम म्यू a ऑफ x1। सेकंड x2 जो है, x2 की भी मेंबरशिप वैल्यू कैलकुलेट करो, x3 है, x3 की भी मेंबरशिप वैल्यू कैलकुलेट करो, एंड नाउ योर फॉर्मूला बिकम, सो x स्टार क्या है, x1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मेंबरशिप वैल्यू प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मेंबरशिप वैल्यू प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय इट्स मेंबरशिप वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मेंबरशिप वैल्यू। ओके, लेट मी टेक वन एग्जांपल, ये सबसे ट्रिवियल टॉपिक है, जैसे कि इस केस में, सो हियर यू कैन सी इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फजी सेट्स, वन फजी सेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ये एक फजी सेट है और इसके आगे एक फजी सेट है। ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट फजी सेट योर हाइट इज व्हाट, द मिडल पॉइंट, है ना, योर हाइट इज व्हाट, द मिडल पॉइंट, है ना, ये एक आपका फजी सेट है, यहां तक मैं इसको इसे डिवाइड कर लेता हूं ऐसे, तो ये एक फजी सेट है, ये एक फजी सेट है। सो टोटली हियर वी हैव गिवन 2 फजी सेट। क्वेश्चन में मेंशन है, जो क्वेश्चन आपको आज के एग्जाम में ना, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये एक आपका फजी सेट है, डिफरेंट कलर रहेंगे, ये एक फजी सेट है, ये एक फजी सेट है। तो आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दी हाइट ऑफ फर्स्ट फजी सेट। तो ये जो फर्स्ट फजी सेट, इसकी हाइट क्या होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्चुअली हाइट है, बट आपको यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मिडल पॉइंट कैलकुलेट करो। वो मिडल पॉइंट क्या होगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा वो, सॉरी, या इट विल बी 3 बेसिकली। अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, 2 और 4 6/2 करते तो वैसे भी 3 आएगा, और आप डायरेक्टली भी ग्राफ से लिख सकते हो। तो ये मिडल पॉइंट क्या है, 3। अगर ये नंबर नहीं रहता तो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप देखो अच्छे से। ओके, तो इस स्ट्रेट लाइन का मिडल पॉइंट होगा 3 की मेंबरशिप वैल्यू है 0.7। यहाँ पे देखो सेकंड फजी सेट की हाइट क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मिडल पॉइंट क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो मिडल पॉइंट होगा 7। तो 7 की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 1। सो 3 × 0.7 मतलब फर्स्ट फजी सेट की हाइट मल्टीप्लाई बाय इट्स मेंबरशिप वैल्यू, सेकंड फजी सेट की हाइट मल्टीप्लाई बाय इट्स मेंबरशिप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मेंबरशिप वैल्यू, दैट विल बी द वेटेड एवरेज मेथड।
ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑन दिस मेथड. एक और एग्जांपल न्यूमेरिकल देता हूँ, तो आप ये वीडियो के भी थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो या वन लास्ट एग्जांपल एंड देन विल स्टॉप. ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी. सो लेट मी टेक वन फजी सेट. Let me take one more fuzzy set. Okay, and now let me consider the points. 0, oh sorry. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 5, this is 6. ठीक है. और ये ऑब्वियसली पॉइंट क्या गिवन होगा, 4 ही होगा, मिडल पॉइंट इसका. ठीक है, तो यहाँ पे और आप क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड एक्स स्टार और फाइंड अ क्रिस्प वैल्यू यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड. तो आपको बस करना क्या है, देयर आर टू फजी सेट. जो फर्स्ट फजी सेट है, फर्स्ट फजी सेट की हाइट क्या है, 1 है, और आपको इनकी मेंबरशिप वैल्यूज भी गिवन होगी. लेट मी कंसिडर दिस वैल्यूज एज 0.9, ये गिवन होगी क्वेश्चन में ही. एंड सेकंड जो है 0.7. डन. सो फर्स्ट जो फजी सेट है ब्लू कलर से मैंने जो डिनोट किया है, उसकी हाइट क्या है, 1, एंड 1 की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 0.9. सेकंड जो फजी सेट है उसकी हाइट क्या है, अभी ये टोटल हाइट हो गया आपकी स्ट्रेट लाइन, तो इसका मिडल पॉइंट आपकी हाइट होगी 4 एंड 4 की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 0.7. सो व्हाट इज योर एक्स स्टार, 1 multiplied by 0.9 plus 4 multiplied by 0.7 divided by sum of the membership value, that is 0.9 plus 0.7. Done. Okay, ये क्वेश्चन आपको आज के एग्जाम में भी है. Is this clear now? These all methods are clear now? Yes, Devanshish, is this clear? Okay, so yeah, so we'll stop here today. This is all about your unit number 2, और यही आपको आज के एग्जाम का भी सिलेबस है. Okay, take your time. Questions are easy. Okay, you can refer in PDF and then you can try that example. Okay, but read करो proper, that is important. Okay, सारे के सारे क्वेश्चन PDF से ही है. Okay, and if you have any doubt you can ask me. Okay, so just let me take the attendance now. Okay, so mechanical attendance is taken, so those students can leave. Now let me take the attendance of computer. Okay, done. I have taken the attendance. If you have doubt, you can ask me here. एक मिनट है, जस्ट 1 मिनट. हाँ बोलो. हाँ, यस, यस, yes, any doubt?